Very good evening, everyone. Welcome back to yet another super interesting biology live session on the wonderful and beautiful platform of Avanti. So, today we are going to learn about something very interesting and important. And what's that? Any guess? Any wild guess? What we are going to learn today? Any guess? One new chapter I'm going to start. Any guess? Which chapter I'm going to start? कोई guess है? No? सोच लो तुक्का. हाँ, नुमान ने सही बताया. Yes, नुमान, correct. आकांक्षा, नहीं, वो तो नहीं पढ़ाऊंगी. वो शायद आपको बॉटनी में पढ़ाया जाएगा. You will get to learn that in botany. Okay? तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, which is human physiology. So in human physiology, the first chapter we are going to start, and that is digestion and absorption. Cool? सबने सुन लिया? क्या start करेंगे? Digestion and absorption. Cool? So now I think it is very much clear to you that we are going to start the topic digestion and absorption, which is the first chapter of human physiology. I hope everyone is comfortable with me. Yeah, Anushka, Mansi, Sakshi, Vaishnavi, Akansha, Janvi, Rohit, Priyanshi, Numan, Mihika, Astha, Tanishka, right? कोई भी doubt हो, hesitation हो, don't hesitate to eat up my head, okay? Yes, you are welcome. You all are welcome to have that. Cool. So lecture number 1 on the topic digestion and absorption. आपके स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? आपके घर में शायद अभी ये यूज हो रहा होगा. Your mom या मैगी दिख रहा है बहुतों को, परोठा दिख रहा होगा बहुतों को, ये क्या बोलते हैं इसको, स्टव दिख रहा है, कढ़ाई दिख रही है, वेसल सब दिख रहा है ना. तो आपकी मम्मा, दीदी, कोई ना कोई तो खाना बना रहे होंगे आपके लिए, अगर आपने अभी तक खाना नहीं खाया है तो, राइट? तो आप अगर खाना खाओगे तो क्या खाओगे? कुछ लोग तो बहुत मतलब जिंदगी बस खाने के लिए बनी है. कुछ लोगों का तो ऐसा है, भाई बस अच्छा लाइफ में खाने को मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए. मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे, वो बोलते थे कि भाई जिंदगी बस खाने के लिए, अच्छा खा सकूं. तो बहुतों का बहुत अच्छा खाने का वो होता है, डिशेस खाने का मन होता है ना. कुछ लोग मैगी खाएंगे, उनका फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट मैगी. कोई अच्छे सत्तू के पराठे, आलू के पराठे खाते हैं, गोभी के पराठे. कुछ भी खा लो भाई, कुछ भी खा लो. सारी चीजें 3 चीजों में बढ़ जाती है आपके बॉडी में. वो क्या है? You say this as major component of food. Whatever you eat, you can divide that into 3 components of food. 3 major components of food. हल्के में मत लेना इसको. 3 major components of food. क्या है वो? Carbohydrates. पता है ना सबको? Carbohydrates, proteins, fats. What are they? Major component of food. Major component of food, right? Yes? What? Rohit? What is that? I did not understand. Pardon. Can you please repeat what you said, Rohit? Yeah, carbohydrate, proteins and fats. These are the major component. Okay. Thank you. These are the major component of the food. Whatever you eat. Cool? Now, whenever you eat very nice food, you always feel like having it more. Isn't it? कि मेरे को और खाना है, पेट भर जाए तो भर जाए, but still I want to have more. ऐसा सोचा है कभी? होता है ना? जिसका भी फेवरेट फूड है, अगर वो बना है घर पे, आप नॉर्मल से ज्यादा खाते हो, ज्यादा खाने का मन होता है. तो 2 चीजें होती हैं आपकी बॉडी में.
एक होता है, सबको पता है क्या? एक होता है हंगर सेंटर और एक होता है सेटाइटी सेंटर। हंगर सेंटर एंड दूसरा सेटाइटी सेंटर। ठीक है, पता है आपको इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है, हंगर सेंटर विल टेल यू कि खाना खाओ, इतना ही खाओ, पेट भर चुका है, मत खाओ ज्यादा। सटाइटी सेंटर का काम क्या है? आज मुझे ये खाने का मन हो रहा है, एंड द मोमेंट यू गेट दैट इन फ्रंट ऑफ यू, you start to feel like having it more and more and more. मतलब satiety center feeling of satisfaction देता है, feeling of satisfaction, है ना? कोई अच्छा खाना अगर नहीं है, आपको पसंद नहीं है, तो आपको कभी भूख लगी है फिर भी अरे यार मन नहीं कर रहा खाने का मुझे, तो ये मन जो है वो कौन है? ये आपका satiety center है, which gives you the feeling of satisfaction. Hunger center tells you बेटा you're hungry, you should eat, खा ले, ठीक है? एंड कितना खाओगे, कब सेटिस्फाई होगे, वो satiety center बताएगा। क्लियर है ना? तो आज का पहला पॉइंट, ठीक है। अब और कुछ है यहाँ पे देखो तो, और कुछ भी नहीं है शायद, बस एक चीज है, मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड, जो भी खाओगे सबको किस में पाओगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स में, है ना? अब चलते हैं, आखिर होता क्या है इसका हमारे बॉडी में, जाता कहाँ है ये हमारे बॉडी में, है कि नहीं? तो ये चीज को सीखो। खाते हो मुंह से, राइट? एंड फ्रॉम वेयर डू यू एक्सक्रीट इट आउट, फ्रॉम वेयर डू यू रिमूव इट आउट? एनस, है ना? Through your anus, the undigested food you will defecate. Yes? तो मतलब कुछ तो लोचा है माउथ से लेके एनस के बीच में, देयर इज सम कनेक्शन आपका माउथ से लेके एनस में, राइट? तो ये जो माउथ से लेके एनस, खाने से लेके बाहर निकालने, जो भी एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट, इसको बोल सकते हो साइंस के टर्म में इंजेशन एंड ईजेशन, समझे? तो इंजेशन से लेकर ईजेशन तक जो भी प्रोसेस होगा सब कहाँ होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होगा। जितने भी बॉडी पार्ट्स आएंगे उसको कहाँ डालोगे? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में, समझे? यस। तो ये जो इंजेशन से ईजेशन तक का प्रोसेस, जो सफर है आपको तय करना है, योर बॉडी हैज टू डू इट। कैसे? तो इसके लिए आपका बेचारा प्यारा सा एलिमेंट्री कैनाल होगा। अकेले तो कुछ कर नहीं सकता, बोलेगा मेरे को ग्लैंड्स चाहिए, मेरे को ग्लैंड्स चाहिए, ग्लैंड्स चाहिए, तो बोलेगा चल एसोसिएटेड ग्लैंड्स लगा देता हूं तेरे लिए, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ओके, सो एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड मतलब उससे जो एसोसिएटेड है, अंग्रेजी का टर्म है, राइट? एसोसिएटेड, उससे जुड़े हुए, राइट? तो एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स विल मेक योर कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। किसी को समझ नहीं आए, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई व्यथा, डोंट हेजिटेट, बिल्कुल तुरंत बोलना है। ओके, तो ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या खाने वाले हो पता है, कहाँ से खाओगे, कहाँ से निकालोगे, कौन सा सेंटर भूख बोलेगा लगा है, कौन सा सेंटर बोलेगा अरे यार मन नहीं कर रहा खाने का, सब क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? प्लीज क्लिक ऑन यस अगर क्लियर है तो, नहीं क्लियर है तो प्लीज क्लिक ऑन नो एंड तुरंत डाउट पूछो जो क्लियर नहीं है। ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जितने बच्चे हैं सभी भाग लेंगे, एवरीवन हैज टू पार्टिसिपेट, कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, एवरीवन हैज टू पार्टिसिपेट। यस, नंबर इज इंक्रीजिंग, गुड गुड। अदर्स क्या कर रहे हो?
अगर कुछ पे क्लिक नहीं करोगे तो मुझे क्या समझ आएगा उससे? 2 बच्चे और, एक बच्चा और, कौन है ये? निकालो उसे खोज कर। हु इज दैट? एक बच्चा, बच्ची भी हो सकती है, यू नेवर नो, बच्चियां ज्यादा बदमाश हो गई आजकल। ओके चलो, आई डोंट नो हु इज दैट हु डिड नॉट आंसर, और मे बी शी कुड नॉट आंसर, ये भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने आंसर नहीं किया है, कोई बात नहीं। अब आ जाओ जो हमें पढ़ना है, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड क्या क्या चीजें हैं, पहले हम वो पढ़ेंगे। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आती हैं पहले हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद करते क्या है वो, उनका फंक्शन क्या है, अगर वो ग्लैंड्स है क्या सिक्रीट करते हैं, वो जो सिक्रीट करते हैं उसका यूजेस क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो इतना तो समझ आना चाहिए, राक्षस की तरह सब हम जो मिलता है खा जाते हैं। गुड्डे बिस्किट काजू वाला, हाँ आई वांट टू हैव। लेज, ग्रीन लेज आई वांट टू हैव। मतलब मैगी खा लेते हैं इसको भी, मतलब कुछ भी खाते रहते हैं हम, राइट? अगर अच्छा लगा है तो भाई तुम जो भी हो हम खा लेंगे तुम्हें, पास्ता, मोमोज एंड ऑल दोस थिंग्स। दिल्ली में तो बहुत फेमस है मोमोज, पता नहीं अब चल रहा है कि नहीं, राइट? तो आप जितना कुछ भी खाते हो हमारी बॉडी उसको तोड़ती है, तोड़ती है, तोड़ती है, तोड़ती है, एंड तोड़ के करती क्या है उसको, इसको समझने के पहले वो समझो। आपने बॉडी के अंदर फूड को डाला, मान लो ये बॉडी, बॉडी आपका सिस्टम एक ऐसा जिसके अंदर आप फूड को डिस्पोज कर रहे हो, चल भाई खा ले, फूड डाल दिया। ये पता है कि 3 मेजर कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स होंगे, थोड़े थोड़े विटामिन चाहिए, थोड़े थोड़े मिनरल्स चाहिए, है ना? अब जो बड़े बड़े फूड है आपके, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, आपकी बॉडी का काम क्या है, क्या करेगी आपकी बॉडी? अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स लिए हो बॉडी में, जो जिम वगैरह जाते हैं ना, वो बोलेगा एकदम नपातुला खाना खाते हैं वो, मैंने 100 ग्राम्स कार्ब लिया, 200 ग्राम्स प्रोटीन लिया, क्योंकि मसल्स के प्रोटीन्स को बिल्ड करना है, राइट? तो क्या होता है हमारी बॉडी में, ध्यान से सुनना, कोई बता सकता है? जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल आप खा रहे हो, कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल, आप उसको सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हो, क्या बोलोगे? छोटे वाले को क्या बोलोगे? माइक्रो मॉलिक्यूल, सिंपल माइक्रो मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स से आप उसको सिंपल माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करोगे, ताकि क्या हो सके, मुझे बताओ। ऐसी कौन सी चीज है आपकी बॉडी में जो ब्लड के हर कोने तक न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है? कौन है वो? कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा होगा उसके बारे में, जल्दी आंसर करो। व्हाट इज दैट टिश्यू in your body which helps in carrying oxygen, nutrients, waste and everything? Yes, Sakshi and Numan have answered. और लोगों को नहीं चमक रहा? क्या है आपकी बॉडी में जो चीजों को लेके जा रहा है, क्या है वो, बताओ। यस, चुटिया कलैया, व्हाट इज दैट, जल्दी बताओ। मानसी हैज आंसर्ड, अदर्स जल्दी जल्दी जल्दी, क्या है जो यहाँ से यहाँ तक चीजें लेकर आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहा है? ब्लड है ना, इतना क्यों सोच रहे हो? यस, आकांक्षा हैज आल्सो गॉट इट, परफेक्ट। तो ब्लड, आपको हर चीज को ऐसे तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है, इस फॉर्म में लाना है कि सारी चीजें एलिमेंट्री कैनाल से किसके पास चला जाए? ब्लड के पास चला जाए। तभी तो ब्लड उस चीज को सेल्स के पास लेकर जाएगा। समझ आया? सिंपल माइक्रो मॉलिक्यूल किस तरह का होना चाहिए? एब्जॉर्बेबल फॉर्म में होना चाहिए। मतलब यहां से वो कहां पहुंच जानी चाहिए? ब्लड वेसल्स में पहुंच जाने चाहिए। समझ रहे हो? तभी तो ब्लड
जहां भी जाना है वहां पे उस सेल को पहुंचाएगा न्यूट्रिएंट्स को, और वो सेल उसको यूज करेगा, वो सेल उसको यूज करके एनर्जी को लेगा। यही तो बोलते हैं ना कि खाना खाओ तभी तो एनर्जी मिलेगी, खाते नहीं हो क्या, कितने पतले हो गए हो, राइट? सो लीन यू हैव बिकम। मम्मी पापा खाना नहीं देते ऐसे बोलते हैं ना आपको पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स जो पतले हैं वो मेरा दुख समझ सकते होगे, आपके पेरेंट्स रिलेटिव्स यही बोलते होंगे, खाती ही नहीं है, खाता ही नहीं है ना? क्यों? तो उससे वीक हो जाता है इंसान अगर खाता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको क्या नहीं मिलता है, अल्टीमेटली उसको एनर्जी नहीं मिलता है। अल्टीमेटली द बॉडी डज नॉट गेट एनर्जी। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो आपने खाना खाया, एलिमेंट्री कैनाल में उसको पास कर दिया, तोड़ो 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 तोड़ो, तोड़कर उसको ऐसा फॉर्म कर दिया जिससे कि वो एब्जॉर्ब हो सके, किसमें? ब्लड वेसल्स में आ जाए, वहां से सेल्स को आप दे सको ताकि सेल्स उसको यूज करके एनर्जी को ले सके। तो हर प्रोसेस को हम पार्ट देंगे। ये यहां से कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल टू सिंपल एब्जॉर्बेबल माइक्रोमोलिक्यूल, इसको क्या बोलोगे? इसको कंप्लीट डाइजेशन बोलोगे। सबको समझ आ रहा है ना? मुझे नहीं पता आपको समझ आ रहा है कि नहीं, जल्दी बता देना, ठीक है? ताकि मैं उस अकॉर्डिंग आपको समझा सकूं, कितना आपको स्पीड चाहिए। आई होप आपको समझ आ रहा है ना? इसको डाइजेशन बोल दिया। अब ये जब एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जब एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जब ब्लड वेसल्स के लिए रेडी हो गया कि भाई अब मैं जा सकता हूं ब्लड के पास, तो जब वो एलिमेंट्री कैनाल से आपके ब्लड में जा रहा है, फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू द ब्लड, क्या हो रहा है? वो एब्जॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज अब्जॉर्प्शन। समझ रहे हो ना? ये वाली चीज को क्या बोलोगे? ये वाली चीज को जो ब्लड में गया, दिस इज योर अब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस। ये वाला प्रोसेस क्या है? अब्जॉर्प्शन। सब रनिंग नोट्स ले लेना जल्दी जल्दी, रनिंग नोट्स से बेस्ट है। कुछ छूट गया तो नोट्स में अपलोड करूंगी, उससे देख लेना, ठीक है? अब ब्लड की हेल्प से वो सेल तक पहुंचा, तो सेल उसको यूज करेगा ना। ब्लड की हेल्प से वो सेल तक पहुंचा और सेल उसको एनर्जी बनाने के लिए यूज करेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? कोई बता सकते हैं? यहाँ पे जब यूटिलाइजेशन होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्या बोलोगे? बाय द सेल, उसको क्या बोलोगे? हाँ साक्षी, वंडरफुल। और कोई ट्राई करना चाहता है? यस नुमान, ऑसम। और कोई ट्राई करना चाहता है? नुमान, साक्षी, और कोई बताओ? मिहिका, सृष्टि, तनिष्का, हाँ आकांक्षा, गॉट इट राइट। उदयन, इसको क्या बोलोगे? एसिमिलेशन, है ना? इस प्रोसेस को बोलोगे एसिमिलेशन। इसको हम बाद में पढ़ेंगे अच्छे से, अभी हमें एसिमिलेशन नहीं पढ़ना है। हम पढ़ेंगे कि हमारा बॉडी सेल कैसे यूज करता है। रिस्पिरेशन एक चैप्टर होगा, उसमें हम देखेंगे कि सेल के अंदर रिस्पिरेशन होता है और उससे वो न्यूट्रिएंट को यूज करता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारा मकसद क्या है? ये वाला प्रोसेस को सीखना और ये वाला प्रोसेस को सीखना। चैप्टर का नाम क्या है? आई एम गेटिंग योर मैसेजेस नाउ। प्रियांशी, मुझे आपका मैसेज अभी दिख रहा है, तब से नहीं दिखा था, ठीक है? को होस्ट में करो मैसेजेस, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि आप होस्ट पे कर रहे होगे, प्लीज मैसेज ऑन को होस्ट। चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो क्या सबको ये समझ आया कि हम पढ़ क्या रहे हैं? खाना खाना है, बड़े बड़े खाने को खाना है, तोड़ना है, इतना तोड़ना है कि उसको एब्जॉर्ब कर सके, और उसको एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से हम ब्लड में भेज सके।
ये है चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कोई डाउट है तो बता दो, कोई डाउट है तो बता दो। अच्छा, आप तब से होस्ट पे मैसेज कर रही थी, ओके। आई होप अगर आपने मेरी क्लास सुनी होगी तो इतना तो मुझे पता है कि आपको समझ आ जाना चाहिए, अगर आपने सुनी है तो, राइट। चलो, अब ये जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, हम क्या कर रहे हैं, उसको कॉम्प्लेक्स वाले मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं। तोड़ने को हम क्या बोलते हैं, लाइसिस। ब्रेक डाउन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं, लाइसिस। क्या बोलते हैं, लाइसिस। अब जब हम उसको तोड़ेंगे, व्हेन यू आर ब्रेकिंग इट, आप एंजाइम को यूज करोगे, और उस तरह के एंजाइम को हम बोलते हैं, सिंस आप वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करोगे और तोड़ोगे, आप वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करोगे और तोड़ोगे, तो वो जो एंजाइम है उसको आप बोलोगे हाइड्रोलेजेस। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसका नेचर क्या होता है, बताओ, नेचर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सब बेसिक्स है, हमें भी कुछ नहीं पढ़ रहे हैं अंदर का प्रोसेस, ये सब जानोगे तो नेगेटिव्स कभी नहीं होंगे। नेचर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोलेजेस। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे ना, तो पढ़ोगे वहां पे कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम होता है। एक एंजाइम हाइड्रोलिसिस करेगा, कोई भी एंजाइम अगर हाइड्रोलिसिस करेगा मतलब वाटर की हेल्प से बॉन्ड को तोड़ेगा, तो उस तरह के एंजाइम को हम बोलते हैं कि वो कौन से क्लास में है, कौन से ग्रुप में है, हाइड्रोलेजेस में है। हाँ, उस तरह के एंजाइम को हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बोलेंगे, बिल्कुल प्रियांश, हाइड्रोलिटिक। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैसे एंजाइम्स है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, ओके। कौन से ग्रुप में रखते हो उसको, हाइड्रोलेजेस में। तो डाइजेशन कैसा प्रोसेस है बताओ, एक हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एक हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है, ओके, गॉट इट। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है जिसमें क्या करते हो बच्चों, कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हो, जो मन आए वो खाते हो, उसको हाइड्रोलिसिस बेचारा डाइजेस्टिव एंजाइम करेगा और उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यही आपका है क्या, कुछ तो गलत कर रही हूं मैं ना, सिंपल एब्जॉर्बेबल, पता नहीं जो भी है, समझ जाना, ठीक है ना, भावनाओं को समझ लो। सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, यही आपका हो गया डाइजेशन, ठीक है। इस सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म को जब आप ब्लड वेसल में भेज दोगे तो वो हो जाएगा आपका अब्जॉर्प्शन। तो हम दोनों चीजों को पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न दोनों चैप्टर, मतलब एक ही चैप्टर में दोनों टॉपिक, ओके, ठीक है, ऑल राइट। सो दैट इज दैट। अब हम प्रिपेयर्ड हो चुके हैं कि हम स्ट्रक्चर को देखें, एक एक बार स्ट्रक्चर को देख लेंगे, थोड़ा सा ओवरऑल क्या क्या है आपको पता होगा, ये है कि नहीं। सबने डाइजेस्टिव सिस्टम कभी ना कभी अपने स्कूल प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट में बनाया ही होगा, कहीं ना कहीं तो एग्जाम में आया ही होगा, है ना, तो सबको पता है ना, एवरीवन नोज। हाँ नहीं, कुछ तो बोलो, ऐसे नहीं जाने दूंगी, आप कुछ तो क्लिक करना पड़ेगा, यस और नो। हाँ, चलो बढ़िया बढ़िया, खुश हो गई मैं, ठीक है, चलो। तो अब हम सीखेंगे माउथ से एनस तक में क्या क्या चीजें आती है, आपको पता है बट फिर भी ये एक इंफॉर्मेशन है, फ्री का है। नीट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये वाले चैप्टर से, डाइजेशन से। अभी का ट्रेंड बिल्कुल अलग हो गया है। पहले ऐसा होता था ना, आप डॉक्टर बनने वाले हो तो पहले ऐसे करते थे वो लोग क्वेश्चन सेट कि मतलब कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देंगे,
ह्यूमन फिजियोलॉजी से, क्योंकि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी से है, आप डॉक्टर बनने वाले हो, तो अज्यूम कर लेते हैं कि पहले ही आप डॉक्टर बन गए। ऐसा पहले होता था, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब उनको पता चल गया बच्चे कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो उतना ही पूछो जितना एनसीईआरटी में है। तो अब क्या होता है, वॉट एवर इज गिवन इन एनसीईआरटी उससे थोड़ा सा ज्यादा पूछेंगे, जो पूछेंगे वो मैं बता दूंगी, ठीक है। तो माउथ स्टार्ट करो, माउथ से। व्हाट डू यू हैव हियर? टंग, टीथ, वो जो कैविटी है उसको क्या बोलोगे? बकल कैविटी। तो पूरे माउथ के अंदर क्या मिला? टीथ मिला, टंग मिला, बकल कैविटी मिला, और क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सलाइवरी ग्लैंड मिलेगा। क्या मिलेगा? सलाइवरी ग्लैंड। ध्यान से सुनो, माउथ है, आ करोगे, माउथ में सलाइवा आएगा ना, अगर खाना अच्छा देखते हो तो सलाइवा आने लगता है, तो ऑब्वियसली सलाइवरी ग्लैंड्स है ना। टीथ है, टंग है, राइट। उससे नीचे आओ, कम स्लोली डाउन। खाना खाते हो ना, एक पाइप यहाँ, एक यहाँ पे ओपन जगह है, ओपन जगह है, उस ओपन जगह को बोलते हैं फेरिंग्स। खाना खाओगे जैसे ही यहाँ पे ऐसे करते हो ना, तो इस जगह में क्या है? स्वेलो करते हो ना खाना ऐसे, तो अंदर में जो जाता है वो कहाँ जाता है? फेरिंग्स। ओपनिंग, माउथ का जो कैविटी है उसका ओपनिंग कहाँ पे है? फेरिंग्स में। कहाँ पे है? फेरिंग्स में। अब वो फेरिंग्स जो है, ऐसा बोलते हैं, ये कॉमन पैसेज होता है एयर का भी, नोज का भी, और फूड का भी। एयर एंड फूड, तो द कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड इज फेरिंग्स। वहां के बाद हवा अपने रास्ते और खाना अपने रास्ते। खाना चला जाएगा फूड पाइप में और हवा चला जाएगा विंड पाइप में, समझे? खाना कहाँ चला जाएगा? फूड पाइप में, और हवा चला जाएगा विंड पाइप में, ठीक है। तो आपका जो कॉमन, यहाँ लिख देती हूँ ऐसे करके, क्या है ये? फेरिंग्स, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ओके, तो फेरिंग्स पे आ गया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं खाना, तो हम खाना पे ध्यान देंगे। तो खाना का जो पाइप है ना, फूड पाइप, खाना का जो पाइप है उसको बोलोगे फूड पाइप। फूड पाइप क्या है? ईसोफेगस। फूड पाइप क्या है? ईसोफेगस। फूड पाइप क्या है? ईसोफेगस। तो फेरिंग्स से जो खाना आएगा कहाँ खुलेगा? ईसोफेगस में। अब जब आप खाना मुंह के अंदर लिए, जब आप खाना अंदर लिए तो सलाइवा से वो मिक्स हो जाता है। सृष्टि, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। जब आप खाना अंदर लिए तो सलाइवा से खाना मिक्स हुआ, उस खाने को क्या बोलोगे जो सलाइवा से मिक्स हो गया? क्या बोलोगे? बोलस। क्या बोलोगे? बोलस। द खाना और द फूड which got mixed with the salivary juices and जो आ चुका है ईसोफेगस में, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मन में बोल लो ना, बोलस बोलोगे, है ना। यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग wherever you are sitting। मम्मी पापा को पता तो चलना चाहिए बच्चा सच में पढ़ रहा है ना। दे शुड फील कि पागल हो गया है, पागल हो गई है, क्या क्या बोले जा रही है, राइट। तो बोलस। अब ईसोफेगस में आराम से चीजें आएंगी। ईसोफेगस में कोई एंजाइम नहीं होता है, देयर इज नो एंजाइम इन द ईसोफेगस। आराम से बोलस अंदर आया, कहाँ गया? अब ये बैग लाइक स्ट्रक्चर में गया।
जो है आपका स्टमक, जो है आपका स्टमक। ठीक है, अब देखो, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर था ईसोफेगस, उससे आपको उसको चीजों को कहाँ डालना था, बोलस को स्टमक में। स्टमक बड़ा एरिया, ईसोफेगस छोटा एरिया, है ना। तो चीजों को जब भी हमें एक जगह से दूसरी जगह डालना है, जैसे कि ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से डियोडेनम, अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं जो उनकी एंट्री को कंट्रोल करेंगे। ईसोफेगस से कितना खाना आना चाहिए, वो कौन कंट्रोल करेगा, मसल्स, ग्रुप ऑफ मसल्स। वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके उनके एंट्री को कंट्रोल करेंगे। तो बोलस की एंट्री को कौन कंट्रोल करेगा, ग्रुप ऑफ मसल्स। क्या बोलते हो उसको, स्फिंक्टर। ग्रुप ऑफ मसल्स को क्या बोलते हो, स्फिंक्टर। हो सकता है आप अलग तरीके से प्रोनाउंस करते होगे, बट समझ जाओ मैं जो बोल रही हूँ, ठीक है, स्फिंक्टर्स। उसके बाद ये स्टमक जो है ना, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। इस स्टमक को, हमारा जो पेट है, कहाँ प्रेजेंट होता है, जल्दी बताओ तो, किसको पता है। स्टमक आपका राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में। डॉक्टर बनोगे तो क्या करोगे बताओ, पेट का ऑपरेशन है। सबको पता है, यस यस। हाँ, कहाँ प्रेजेंट है, वंडरफुल, लेफ्ट साइड में। एक और चीज आपको पता है ना, अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो तो आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग स्टमक आपको राइट साइड दिख रहा है कि नहीं, यस और नो। आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको स्टमक राइट साइड दिख रहा है कि नहीं, यस और नो, यस। हाँ, तो हमेशा जब आप डॉक्टर बनोगे ना, तो हमेशा पेशेंट आपके सामने होगा, हमेशा पेशेंट आपके सामने होगा। तो जब सामने होगा तो उसका लेफ्ट जो होगा, उसका जो लेफ्ट होगा, इमेजिन करो मैं आपकी पेशेंट हूं, मैं आपकी पेशेंट हूं, मेरा जो लेफ्ट है वो आपके अकॉर्डिंग आपका राइट होगा कि नहीं, होगा ना। और मेरा जो राइट है वो आपके अकॉर्डिंग लेफ्ट होगा कि नहीं, होगा ना। तो हमेशा पेशेंट को आपको इमेजिन करना है, आपके सामने पेशेंट है, उसी के अकॉर्डिंग सारे डायग्राम्स बनाए गए हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो डायग्राम्स देखोगे ना, जो भी लेफ्ट दिखता है मतलब वो राइट है, जो भी राइट दिखता है मतलब वो लेफ्ट है। क्यों, क्योंकि हमेशा जो डायग्राम्स बनाया गया है, यही इमेजिन करके बनाया गया है कि आपके सामने एक पेशेंट है। तो अगर आपके सामने पेशेंट है तो ये तो क्या है, उसका लेफ्ट पार्ट है। भले आपको राइट में दिख रहा है बट उसका तो लेफ्ट है, आपके सामने खड़ा है। समझ रहे हो कुछ। इस चीज को हम एनाटॉमिकल पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनाटॉमिकल। पोजीशन छोड़ो, बाद में वो सब सीखना। मतलब एनाटॉमिकली हम ऐसे ही चीजों को नेम करते हैं, एनाटॉमिकल नेमिंग बोल सकते हो, है ना। जो लेफ्ट होगा राइट होगा, जो राइट होगा लेफ्ट होगा। मतलब आपको एक पेशेंट को इमेजिन करना है, उसके बाद सब कुछ बताना है। ओके, तो ये स्टमक है आपका लेफ्ट पार्ट में, अब तो सबको क्लियर है। और ये स्टमक के 4 पार्ट्स कौन कौन से, जहां पे ओपन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक। जहां ओपन हो रहा है उसको क्या बोलोगे, कार्डियक। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलोगे, फंडिक। पता नहीं कहीं लिखा है कि नहीं, मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ये जो छोटू सा पार्ट दिख रहा है ना, ये है आपका फंडिक और फंडस। ये जो दिख रहा है ना पूरा पूरा, हाँ प्रियांशी, डायग्राम्स सारे पेशेंट लोगों को सोच के बनाया जाता है, ठीक है। आपके सामने पेशेंट है, ये जो पूरा दिख रहा है उसको बॉडी बोलोगे। क्या बोलोगे, पूरे चीज को क्या बोलोगे, बॉडी। और ये जो अभी ओपन हो रहा है किसी और स्ट्रक्चर में, डियोडेनम में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में,
इस वाले पार्ट को क्या बोलोगे? पाइलोरिक। क्या बोलोगे? पाइलोरिक। इस वाले पार्ट को क्या बोलोगे? पाइलोरिक। अब देखो, 4 पार्ट्स हो गए, कार्डियक, फंडिक, बॉडी, पाइलोरिक। अब इस कॉन्सेप्ट को लगाओ। जब ईसोफेगस एंटर किया बोलस को, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्फिंक्टर्स थे, मसल्स थे। क्या बोलोगे? इसका नाम क्या दोगे? ये कौन सा पार्ट है? कार्डियक। तो इस स्फिंक्टर का नाम क्या दोगे? कार्डियक स्फिंक्टर। सिंपल है। अब ये जो पाइलोरिक पार्ट है वो डिओडेनम में ओपन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बताओ, यहाँ पे भी आपको स्फिंक्टर की जरूरत पड़ेगी। क्या नाम दूं मैं इसको? क्या नाम दूं मैं इसको? पाइलोरिक यहाँ ओपन हो रहा है, बताओ। नाम दे देती हूँ इसको, पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या समझ आ रहा है ना? हमेशा चीजों को रिलेट करो। कार्डियक में ओपन हुआ तो कार्डियक स्फिंक्टर बोल दिए, पाइलोरिक से बाहर निकला तो पाइलोरिक स्फिंक्टर उसको कंट्रोल किया। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर किसी को एसिडिटी होता है, बोलते हैं ना इस इंसान को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, बोलते हैं ना, अरे इस इंसान को ना गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है। तो गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम मतलब एसिडिटी। एसिडिटी मतलब किससे रिलेटेड है? वो पेट से रिलेटेड है कि नहीं, सोच के बोलना। इज इट रिलेटेड टू स्टमक? सोचना और बोलना, है ना? बिल्कुल। तो ये गैस्ट्रिक, इसको मैं गैस्ट्रिक पार्ट बोल देती हूँ। ये ईसोफेगस का पार्ट है। तो कभी कभी आप सुनोगे ये जो स्फिंक्टर है उसका नाम दोनों को यूज करके दे दिया गया, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो स्फिंक्टर कहाँ पे है? स्टमक और ईसोफेगस के ओपनिंग के लिए है। तो इसको कहीं कहीं एनसीईआरटी में आई थिंक पढ़ोगे, वो यही लिखे है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। बट ये है क्या? कार्डियक स्फिंक्टर। समझ रहे हो ना? गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। पहला स्फिंक्टर हमने सीखा है अभी, कार्डियक स्फिंक्टर। इसको एक और नाम दे सकते हो, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। कूल। अब चलो यहां आ जाओ फिर से। अब जब खाना मतलब बोलस ईसोफेगस से पेट में चला गया, पेट में भी गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं ना, पेट में भी एंजाइम होगा, गैस्ट्रिक जूसेस होगा, उससे भी बोलस मिक्स हो गया। अब उसको क्या बोलोगे? क्या उसको अभी भी बोलस बोलोगे? क्या बोलोगे बताओ? जब खाना पेट में जाके मिक्स हो गया। बिल्कुल सृष्टि, अमेजिंग, यस एवरीवन नोज इट, राइट। क्या बोलोगे उसको? काइम। क्या बोलोगे? काइम। जिसको थोड़ा भी डाउट है ना, सब क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। काइम। ठीक है। अब पाइलोरिक स्फिंक्टर से खुल गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों? जल्दी बताने का, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, प्रियांशी ने बता दिया। आपका होगा, हाँ साक्षी, सृष्टि, सबने बताया। डिओडेनम होगा जिसका शेप होगा सी के जैसा। फिर जेजुनम होगा जो थोड़ा कॉइल्ड होगा, थोड़ा सा कॉइल्ड होगा। इलेयम होगा जो हाईली कॉइल्ड होगा। ठीक है। अब देखो, मैं हमेशा इसको इलेयम बोलती हूँ, इलेयम। कोई रीजन होगा जरूर, है ना? हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा इलियम, आई है वहां पे स्पेलिंग, इसलिए कंफ्यूजन नहीं हो। अभी से आप इसको क्या पढ़ोगे? इलेयम। ठीक है। अगर इलियम पढ़ोगे ना तो दोनों तरफ कंफ्यूज कर जाओगे कौन सा स्पेलिंग है। इसको इलेयम पढ़ो। हमारे पैर में, हम सीखेंगे लोकोमोशन वाले चैप्टर में, इलियम पाया जाता है, तो वहां पे हम इलियम बोलेंगे, यहाँ पे हम इलेयम बोलेंगे।
जो अच्छा है याद करने के लिए, जहां से जितना कम कंफ्यूजन हो सके। ठीक है, इलेयम। ओके, तो डिओडेनम में कहां से खुला? पाइलोरिक स्फिंक्टर से खुल गया। अब जैसे ही डिओडेनम में आ गया बच्चों, माय डियर चिल्ड्रन, जैसे ही डिओडेनम में आ गया मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में फंस गया। फंस गया ना, इतना लंबा चौड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन फंस गया। बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन को खोलोगे ना, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को एक टेनिस कोर्ट बना दोगे, इतना लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इतने अच्छे से वो फोल्डेड है हमारे बॉडी में, राइट। तो फंस गया जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बताओ, यहाँ पे भी तो कोई एंजाइम्स होंगे। फाइनल डाइजेशन, फाइनल एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, क्योंकि इसके बाद तो लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, वो तो रिमूवल ऑफ वेस्ट करेगा। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ एब्जॉर्ब होगा, थोड़ा थोड़ा, बट मेजर मेजर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? कंप्लीट डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बताओ, बोलस आया, पेट में गया, काइम बन गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो क्या बोलोगे? जल्दी बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो क्या बोलोगे उस खाने को? जल्दी बोलो। हाँ, यस यस यस। प्रियांशी, नुमान, जानवी, सबने आंसर दे दिया। सृष्टि, तनिष्का बताओ, उदयन, मिहिका, मानवी, भव्या। हाँ, मिहिका ने आंसर दे दिया। और बताओ, भव्या, आस्था, अनुष्का है क्या अभी भी? अनुष्का मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी मेरे कॉलेज में, दिल्ली की थी वो अनुष्का। ओके, तो उसको बोलते हैं काइल। ठीक है, क्या बोलते हैं? काइल। ऑल राइट, बोलस से काइम, काइम से काइल। काइल के बाद जितना अब्सॉर्ब करना है कर लो, जो अब्सॉर्ब नहीं होगा कहाँ भेज दो? लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दो, है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? इलेयम से, इलेयम से खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। इलेयम तो लास्ट पार्ट है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो इलेयम से कहाँ जाना है खाना को? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, जैसे कि सीकम, कोलोन, रेक्टम, है ना। तो इलेयम से जब खाना सेकम में जाता है, जब इलेयम से खाना सेकम में जाता है, तो खाना आपका वेस्ट है, कोई अच्छा खाना नहीं जा रहा, इसको बाहर निकालना है। तो हम क्या श्योर करेंगे कि सिक्कम का कुछ भी फिर से वापस ना जाए। सिक्कम में जो आ गया, दरवाजा बंद हो जाना चाहिए, द गेट शुड बी क्लोज्ड। जो आया आ जाओ, जाने किसी को नहीं मिलेगा। इलेयम से सिर्फ आना है, जाना नहीं है। तो कैसे कंट्रोल होता है? वन वे फ्लो। हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है जिससे वन वे फ्लो होता है? एक ही डायरेक्शन में चीजें जाएंगी। हार्ट में भी सुना होगा, प्रेजेंट होता है एक डायरेक्शन में चीजों को फ्लो कराने के लिए। दिल में सुना हो, हाँ गॉट इट नाउ, सबको समझ आ गया अब ना। उसको बोलते हैं वैल्व। तो इलेयम से सीकम में जाने के लिए क्या प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? वैल्व। बोलोगे मैम नाम क्या दे दे इसका? एकदम इजी है, इलियम सीकम के बीच में है, इलियोसीकल वैल्व। इलियोसीकल वैल्व। या इतना डिफिकल्ट है? डायरेक्ट यही बोलो, इलियम सीकम वैल्व, कोई गलत नहीं बोलेगा। इलियम सीकम वैल्व। इससे क्या होगा? जो सीकम में आ गया दरवाजा बंद, सीकम से वापस नहीं जाएगा इलियम। ठीक है, तो सीकम का कुछ कुछ सिग्निफिकेंस है। सीकम में ना कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, उसका एप्लीकेशन और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, राइट।
सीकम में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, बहुतों ने सुना होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन, है ना। तो सीकम में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यह वेस्टिजियल है मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए जब भी पेट में दर्द हुआ, यहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हुआ, तो डॉक्टर इसको निकाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर बोलते हैं भाई निकाल ले, क्योंकि ऐसे भी कोई काम का नहीं है आपकी बॉडी में, तो निकाल लो। इसीलिए लोग अपेंडिक्स को ऑपरेशन करा लेते हैं, राइट। तो सीकम में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हो, ठीक है। अब आ जाओ कोलोन में। सीकम से खाना कहाँ जाएगा, कोलोन में। सीकम से खाना कहाँ जाएगा, कोलोन में। तो आपका ऐसा कोलोन होगा, मान लो ये सीकम था, है मतलब मान लेते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, तो सीकम से खाना जाएगा कोलोन में, बड़े बड़े कोलोन होंगे, खाना जाएगा। हम सब कुछ पढ़ेंगे, ये जो फोल्डिंग्स है ना, इसका भी नाम है, पता है आपको, इस फोल्डिंग्स के भी नाम है, टीनिया, ये सब नाम है, सीखेंगे, घबराना नहीं है, सब सीखेंगे। अभी फिलहाल हम जो बचपन से आप सीखते आए हो वो सीख रहे हैं। चलो नाम बता दो फटाफट। ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इट इज गोइंग टुवर्ड्स अप। क्या मैं उसको असेंडिंग कोलोन बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकती हूँ, कोई मत बोलना नहीं बोल सकते, बोल सकती हूँ ना, ऊपर जा रहा है। व्हाट इज इट, जल्दी बताओ। असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। अब ये स्ट्रेट जा रहा है ना, स्ट्रेट जा रहा है, तो इसको ट्रांसवर्स बोल सकते हैं ना, ट्रांसवर्स कोलोन। एंड ये तो नीचे आ रहा है, तो बोल दो, क्या बोलोगे इसको, ऊपर से नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग कोलोन, है ना, डिसेंडिंग कोलोन। और ये एक बड़े से कोलोन में एंड होता है जिसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। तो अभी तक पता है हम बुक्स में पढ़ते आ रहे थे, पुराने वाले एनसीईआरटी में, जब पुराना वाला एनसीईआरटी था ना, उसमें बस यही बताया था, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। अब जो नया वाला एनसीईआरटी अगर आप देखोगे, वहां पे उन्होंने सिग्मोइड कोलोन को भी डाला है, उसके बाद उन्होंने रेक्टम डाला है, एंड उसके बाद एंड में एनस डाला है। समझे, ये आपका हो गया जो आपको अभी तक जानना चाहिए था, 10th तक जो आपने पढ़ा है। सभी को ये सब क्लियर है, इज इट क्लियर, प्लीज क्लिक ऑन यस। अगर कोई भी डाउट है तो नो पे क्लिक करो और पूछ लो, है ना, कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। अनुष्का कुछ तो बोल लो, ऐसा क्या शर्माना, बीच का ज्ञान है। हाँ, मानसी का तो रिप्लाई आता है। अनुष्का कहाँ हो, आपका रिप्लाई अभी तक नहीं आया। साक्षी का रिप्लाई आता है, आकांक्षा का रिप्लाई आता है, वैष्णवी, हाँ अनुष्का का रिप्लाई आ गया, यस यस। वैष्णवी कहाँ हो, जानवी का तो रिप्लाई आता है, रोहित का तो पूछो ही मत, बहुत सारे रिप्लाई आते हैं, प्रियांशी का रिप्लाई आता है, नुमान, भव्या, भव्या, मेरे को भव्या चाहिए, आस्था एंड भव्या, बाकी सबका आंसर आता है, बाकी सबका आंसर आ चुका है। भव्या एंड आस्था, क्या समझ आ रहा है, आपने यस पे क्लिक किया है, चलिए आस्था ने तो यस पे क्लिक किया है, भाव्या ने क्लिक किया है, भव्या ने, एक बार चेक करो ना आप लोग, भव्या के नाम के आगे ग्रीन टिक लगा है क्या, यस और नो बताना मुझे चैट पे। भव्या के नाम के आगे यस नो लगा है, सबको बोलना है, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, नो है ना। हाँ तो भव्या जी कहाँ है आप, आई थिंक वो नहीं सुन रही है, शी इज नॉट इवन लिसनिंग टू अस, आई थिंक, देखने को मुझे, भव्या,
हाँ, वो तो सुन ही नहीं रही। देखो उनके नाम के आगे वो हेडफोन वो वाला साइन नहीं है। हम्म। शी रन्स क्लास इन बैकग्राउंड और कुछ और कर रही है क्या? ऑडियो कनेक्ट नहीं किया है उसने, सही बात है ना, तब से मैं उसको ऐसे बोल रही हूँ। चलो चलो। तो भव्या पहली बार आई है क्या क्लास में? आप उनको जानते हो? भव्या को जानते हो पहले से? ये आज पहली बार क्लास में दिख रही है? मेरे को बता दो एक बार। पता नहीं। अच्छा, पता ही नहीं है क्या अभी तक? इतने दिनों से क्लास कर रहे हो, आपको अभी तक अपने पार्टिसिपेंट्स के बारे में नहीं पता? थोड़े स्टार्टिंग से ही है साक्षी। ठीक है ठीक है। तो मैं भी उसको पता होगा कैसे कनेक्ट करना है ना? शी नोज हाउ टू कनेक्ट, राइट? ठीक है चलो। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मतलब वो विलिंगली कनेक्ट नहीं हो रही है, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके। आ जाते हैं वापस यहाँ। अब देख लो, अब सब समझ आ जाएगा जो मैंने बताया। माउथ, बकल कैविटी में टीथ पढ़ेंगे, टंग पढ़ेंगे, सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे। ईसोफेगस में पढ़ेंगे कि कौन से टिश्यूज है। ठीक है सृष्टि, थैंक यू। ठीक है, कौन से उसके लेयर्स है टिश्यूज के। फिर पढ़ेंगे कि स्टमक में कौन कौन से ग्लैंड है, क्या सिक्रीट करता है, क्या डाइजेस्ट करता है। फिर पढ़ेंगे डिओडेनम में कौन कौन से सिक्रीशंस होंगे, डिओडेनम में क्या डाइजेशन होगा। फिर स्लोली जेजुनम इलियम में देखेंगे क्या क्या एब्जॉर्प्शन होगा, कैसे कैसे एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन कैसे अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड को बाहर रिलीज कर देगा। ठीक है? ओके। यही है आपका डाइजेशन। डिफिकल्ट है क्या? डिड यू फील इट इज डिफिकल्ट? ऐसा कुछ लगा? नहीं ना? बहुत इजी चैप्टर है। एक तो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, दूसरा इजी है ना? हमने स्टार्ट कर दिया है रोहित, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हवा में पढ़ा रही हूँ, ठीक है? हमने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। श्री गणेश हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे कौन सा ऑर्गन? माउथ। है ना? माउथ में हम पढ़ेंगे बकल कैविटी के अंदर टीथ कैसा होता है, टंग में टेस्ट बर्ड्स कैसे होते हैं, फिर सलाइवरी ग्लैंड कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, उनका काम क्या है, ये हम पढ़ेंगे यहाँ। फिर सेम सब कुछ वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है? यस। चलो, अब किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। कल से हम स्टार्ट करेंगे माउथ का पढ़ना, माउथ के ऑर्गन में क्या है। एक एक करके सारे ऑर्गन को पढ़ना है हमें। ठीक है? अच्छा, सृष्टि का एक डाउट है। सृष्टि, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दिस। एक डाउट है जो मैं बता रही हूँ सृष्टि का। क्या डाउट है? वो बहुत अच्छा डाउट है एक्चुअली। वो क्लियर हो जाएगा जिस दिन मैं आपको ये पढ़ाऊंगी ना। ब्रीदिंग, मतलब इसके बाद वाला जो चैप्टर है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पहले ही क्लास में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा सृष्टि। सृष्टि का ये डाउट है कि मैम, ईसोफेगस जैसे आपका बॉडी है ना, तो ईसोफेगस आगे है, फ्रंट में ईसोफेगस है, या ट्रैकिया है, विंड पाइप। ट्रैकिया आपका विंड पाइप है ना, तो ट्रैकिया आगे है या ईसोफेगस, मतलब समझ रहे हो? अगर ये बॉडी है, अगर ये बॉडी है तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे ट्रैकिया है या फिर ईसोफेगस पीछे वाला स्ट्रक्चर है, वो बताना है। ठीक है? प्रियांशी ने आंसर दे दिया है। ये चीज आपको जिस दिन मैं ब्रीदिंग पढ़ाऊंगी एकदम अच्छे से क्लियर करके बताऊंगी कि वो सी वाला जो कार्टिलेजेस होता है वो इनकम्प्लीट क्यों होता है। अच्छा चलो, मैं ना आपको आंसर नहीं बताती हूँ सृष्टि, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ। देखो आपको दिमाग लगा के समझ आता है कि नहीं। ये ट्रैकिया, मान लो ये ट्रैकिया और ये इसोफेगस। ये ट्रैकिया, राइट वाला इसोफेगस। ट्रैकिया में आप पढ़ोगे कि उसकी जो रिंग होती है ना, वो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है। सी वाला शेप होगा, पूरा सर्कल नहीं बनाएगा।
हाँ प्रियांशी, आपका आंसर सही है। ठीक है, पूरा सर्कल नहीं बनाएगा, सिर्फ ऊपर में कार्टिलेजिनस रिंग होता है। तो इस साइड कार्टिलेजिनस रिंग क्यों नहीं होगा? कुछ होगा तभी तो, कुछ होगा तभी तो। जानवी को भी आंसर मिल गया है। पीछे के साइड कुछ है तभी तो यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग कंप्लीट नहीं बन रहा है। सृष्टि, आंसर मिला कुछ? पीछे की तरफ क्या है? मैं आंसर नहीं बताऊंगी, सोच के खुद ही सोचो, दिमाग लगाओ। गॉट इट ना? हाँ, वैसे मैं ब्रीदिंग भी जब पढ़ाऊंगी ना, ब्रीदिंग तो और खतरनाक पढ़ाऊंगी। ठीक है, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड, पूरा मस्त वाला, कैसे एक्सचेंज होता है गैसेस एंड ऑल। ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना, सबको इंटरेस्ट होता है, मुझे भी इंटरेस्ट है। ठीक है, आपने जो चैप्टर पढ़ना था वो एनिमल किंगडम वगैरह पढ़ लिया है, बहुत अच्छा किया है ना। मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं आता एनिमल किंगडम पढ़ाने में, बट इतना तो पढ़ा ही देती हूँ कि एनिमल किंगडम बच्चे क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं, ट्रिक वगैरह बता के अच्छे से सिखा के। बट इंटरेस्ट नहीं आता एनिमल किंगडम में, है ना। मतलब पता है सब कुछ, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा है ना। नहीं नहीं उदयन, हम एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हम डाइजेशन कंप्लीट करेंगे, फिर ब्रीदिंग करेंगे, उसके बाद फॉलोड बाय ऑल द चैप्टर्स। प्रियांशी बोल रही है कि एपिग्लॉटिस भी ग्लॉटिस। अच्छा, मैं सबको वो कर देती हूँ ना, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप जो बोलना है बोल सके। एपिग्लॉटिस भी ग्लॉटिस को इसलिए ही क्लोज करता है। हाँ, बिल्कुल सही। ग्लॉटिस जो होता है विंड पाइप का ओपनिंग होता है, जिसके ऊपर एपिग्लॉटिस कवर होता है। ये नॉर्मल डिस्कशन चल रहा है क्लास का, ठीक है। जिसको भूख लगी है, मैं अभी डाइजेशन का कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। हम माउथ कल से स्टार्ट करेंगे, ओके। जिनको डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, आई एम हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन इट, आप रह सकते हो। जिनको भूख लगी है, खाना खाना है, आप मीटिंग को लीव कर सकते हो, ठीक है। हाँ आकांक्षा, मेरे को पता नहीं है आपका फोल्डर कौन है, आप मुझे बता सकते हो? आई हैव नेवर टॉट यू ना, तो मुझे आपका फोल्डर नहीं पता है। कि आपके फोल्डर का नाम मुझे बस बता दो। आप जब ओपन करते होगे तो उस फोल्डर का नाम मेरे को बताओ, मैं उसमें मुझे आज वाली क्लास भी अपलोड करनी है उसमें, तो मेरे को फोल्डर का नाम बस बता दो प्लीज। साक्षी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर स्फिंक्टर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे तो कभी कभी इनडाइजेशन, जैसे वॉमिटिंग होता है, ठीक है। वॉमिटिंग कब होता है? जब स्टमक का खाना बाहर आ जाए, मतलब स्फिंक्टर काम नहीं किया, है ना। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट काम नहीं कर रहा है, तो स्फिंक्टर नहीं काम करने से बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपका डाइजेशन बहुत खराब हो सकता है, ठीक है। उसे हार्टबर्न कहते हैं। क्या सृष्टि? मैम, उसे हार्टबर्न कहते हैं जब वो स्फिंक्टर मसल्स काम नहीं करते हैं तो। नहीं नहीं नहीं, हार्ट बर्न आपका डिफरेंट है, अलग अलग कंडीशन पे होता है। हार्ट बर्न आपको, जैसे आप कभी ज्यादा ऑयली फूड खा लेते हो ना, ज्यादा ऑयली फूड वगैरह खा लेते हो, तब हमें वो फील होता है कि हार्ट बर्न हो रहा है, तो वो अलग कंडीशन है, हम सीखेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि स्फिंक्टर काम नहीं करता तो ही हार्ट बर्न होता है, ज्यादा ऑयली चीजें खाने से हमें हार्ट बर्न का फीलिंग होता है, ठीक है। मैम, जब जब वॉमिटिंग होने वाली होती है तब ईसोफेगस में वापस खाना आने लगता है। हाँ, तभी तभी होती है, तो फिर उस टाइम पे स्फिंक्टर अच्छे से काम क्यों नहीं कर पाता, उसे रोक क्यों नहीं पाता? क्योंकि आपका मेड्यूला कंट्रोल नहीं कर पाता। जो वॉमिट सेंटर है ना आपका प्रियांशी, वो मेड्यूला में है, ठीक है। तो मेड्यूला ऑब्लेंगेटा कंट्रोल करता है चीजों को। हमें दिख तो रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम खुद से ग्लैंड है, एंजाइम है, सिक्रीट हो रहा है, ऐसा नहीं है। सब कुछ आपका मेड्यूला ब्रेन न्यूरॉन से इंटरलिंक्ड है। तो अगर मेडुला ऑब्लिंगेटा आपका फंक्शन उस समय थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा जो वॉमिट सेंटर है वो एक्टिव हो जाता है, और आपका रिवर्स पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट हो जाता है। रिवर्स मतलब खाना ऊपर से नीचे जाना चाहिए, बट नीचे से ऊपर जाने लगता है, इसीलिए वॉमिट होता है। मेडुला का वॉमिट सेंटर एक्टिव होता है, ठीक है आकांक्षा, ठीक है। जेई नीट हिंग 01 जेई, ओके, आई विल डू इट। और कोई क्वेश्चंस? एंड कर देती हूँ पहले तो रिकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच।